गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके, ऑल फाइन। ओके डियर्स, लेट स्टार्ट। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एज डिस्कस्ड yesterday in on class. There are 5 types of chemical bonding which are discussed as types of bonding and atoms involved in the bonding. Okay, so ionic bonds. First bond is ionic bond. The atoms involved in the ionic bond are metals and non metal. Atoms होते हैं और non metals होते हैं. Okay, metals क्या होती हैं? You know ना, metals the element which lose the electron. Okay, and non metal the element which gains the electron is known as the non metal. मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और नॉन मेटल क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं. सेकेंड इज वन कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व नॉन मेटल एटम. ओके. थर्ड इज वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड आल्सो इन्वॉल्व नॉन मेटल. ओके डियर. नाउ फोर्थ इज वन मेटेलिक बॉन्ड. मेटेलिक bonds involves metals only metals. ओके. और जनरली क्या ऑलवेज हमेशा सेम टाइप का मेटल की एटम्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं एंड मेटल्स फॉर्म होती है, लाइक आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, प्लेटिनम एट्सेट्रा. अबाउट 80%, listen, about 80% of known elements are metals. Okay. Now fifth is the hydrogen atom. Hydrogen atoms, whenever the hydrogen atom is directly bonded to the phone means F for fluorine, O for oxygen, N for nitrogen, directly bond hydrogen atom, then hydrogen bonding is obtained. Okay dear. So there are 5 types of chemical bonding. Now first is one electrovalent or ionic bond. Electrovalent or ionic bond formed when one atom having the property of losing of electron and another atom having the property of gaining of electron come close to each other, then the then the electrovalent या ionic bond is formed. Okay. When one of the atom metal electropositive like sodium or potassium should be capable to lose the electron and another atom, जो दूसरा atom होगा chemical bonding में जो पार्ट कर रहा होगा, वो कैसा होना चाहिए? नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन. शुड बी कैपेबल, जो नॉन मेटल होती हैं वो शुड बी कैपेबल टू एक्सेप्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ओके डियर. ओके. The molecule formed by the ionic bond is called ionic molecule or compound. Okay, molecule or compound. For example, let's see the formation of simple ionic compound like sodium chloride का formation होना है. Okay, see here sodium का electron configuration 281. It has one electron extra in order to the octet के अलावा ये एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा है. ओके. 1 इलेक्ट्रॉन क्या है इसका? एक्स्ट्रा है. ओके. तो और सी क्लोरीन हैविंग द एटॉमिक नंबर 17, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287. क्लोरीन हैज one less electron in order to octet से एक इलेक्ट्रॉन कम है. Therefore sodium lose one extra electron and form the sodium ion.
positive ion known as cations. Having the electronic configuration 2,8, which is the most stable configuration, which is known as the inert gas configuration. Okay, octet configuration. Similarly, chlorine ion gains one extra electron, which is loosed by sodium atom, and form chloride ion having the electronic configuration 288, and another it is another stable configuration of inert gas. Okay dear, now तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो प्रोसेस है इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी. लास्ट चैप्टर में आपने बताया मैंने डिटेल में आपको. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रोसेस है वो क्या है, प्रोसेस. एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स एनर्जी इवॉल्व होती है. ओके, ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है देन द प्रोसेस और रिएक्शन इज नोन एज द एंडोथर्मिक. whenever the energy is evolved during the reaction, then the reaction is known as the exothermic reaction. Okay dear, let's see the sum of the two enthalpies, this and this, is 147.1 kg per mole, is more than the enthalpy of lattice NaCl formation, which is minus 788 kilojoule per mole. Therefore the energy is released during the formation of lattice NaCl. Okay dear, means जो दोनों एनर्जी का डिफरेंस कितना 144 है, 147 है. ओके, और जब लेटेस्ट एनर्जी NaCl की वॉन हेवर साइकिल है उससे आप डिटरमाइन करते हैं लेटेस्ट एनर्जी, तो NaCl की लेटेस्ट एनर्जी कितना आया, इतना. Therefore the energy released during the formation of NaCl, because the sum of the energy of both process is greater than the latest energy of. Okay, latest, what is the latest energy? Energy released in the formation of 1 mole of lattice from its gas ions in the gaseous state, which are किस में होंगे, gaseous state में, is known as the lattice enthalpy. means अगर किसी लेटिस के लेटिस का फॉर्मेशन हो रहा और वो फॉर्मेशन कितना हो रहा, 1 मोल हो रहा, और कहाँ से हो रहा है, गैसियस एटम से हो रहा है. किससे हो रहा है, गैसियस एटम से, गैसियस आयन से हो रहा. देन द एनर्जी रिलीज्ड, energy required to the formation of the lattice is known as the lattice energy या enthalpy of crystal. Okay, enthalpy of crystal. Okay, now or another definition, the energy required to the complete separation of 1 mole of the crystal solid ionic compound into its gaseous ion, just reverse process. वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा. सेम 1 मोल ऑफ लेटेस्ट का इनटू द गैसियस आयंस में, तो द रिक्वायर्ड एनर्जी इज नोन एज द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द सॉलिड. हायर द लेटेस्ट एनर्जी क्रिस्टल द ग्रेटर इज ऑफ फॉर्मेशन. जितनी ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी उतना आसानी से लेटेस्ट फॉर्म होगा और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी. इन ऑर्डर द लेटेस्ट एनर्जी इज एज, द ऑर्डर है लेटेस्ट एनर्जी का, देखिए बाईवेलेंट आइंस हैं अगर लेटेस्ट में तो हैव ग्रेटर एनर्जी देन दैट ऑफ यूनी बाई आइन और बाई यूनिवेलेंट आइंस विच इज ग्रेटर देन द यूनी आइंस. मीन्स एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे शो करें. ओके, सी बाईवेलेंट मीन्स कैल्शियम सल्फेट. ओके, ये बाईवेलेंट हो गया. क्या हो गया, बाईवेलेंट. यूनिबाईवेलेंट मीन्स लिथियम सल्फेट. ओके, फिर यूनिबाईवेलेंट हो गया या बाई यूनिवेलेंट हो गया. यूनिवेलेंट मीन्स NaCl.
Therefore, between the three salts, calcium sulfate has highest latest energy, then lithium sulfate, then least latest energy has sodium chloride. ओके डियर, तो आप विद एग्जांपल से मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि लेटेस्ट एनर्जी कैसे डिपेंड करती है वैलेंसी पर. ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, कॉमन साल्ट या रॉक साल्ट. सी, NaCl हैज़ द क्यूबिक स्ट्रक्चर. हाउ द क्यूब फॉर्म, देखिए सी एक क्यूब बनाइए आप. अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की बात की तो एक क्यूब बनाएं, ये क्यूब बन गया. इसके मिड में एक पॉइंट पुट करेंगे और इस पॉइंट पे अनदर सेम लेंथ का एक क्यूब आप ड्रॉ कर देंगे एंड द रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स को ऐड कर देंगे. ओके, इट इज़ द क्यूब. एग्जाम्पल मैच बॉक्स, टेबल एक्सेट्रा, बुक, ये क्या है, क्यूब स्ट्रक्चर होते हैं. तो क्यूब स्ट्रक्चर NaCl का होता है. NaCl में जो स्ट्रक्चर में जो Na सोडियम आयन होता है, क्या होता है, सोडियम आयन इज सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयन एंड 1 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई 6 सोडियम आयन्स. मीन्स anion is surrounded by cations surrounded by anions. Then the coordination number of NaCl is 6. Coordination number is the number of ions, number of cations या number of anions which are around the opposite ions. Means number of cations around the anions or number of anions around the cations. Okay, it is the coordination number. तो NaCl coordination number is 6. important point है, पूछा जाएगा MCQs में. ओके, नाउ फैक्टर फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटल एटम शुड बी लार्ज. ओके, नॉन मेटल एटम शुड बी स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी डिफर एट लीस्ट 1.9. डिफरेंस कितना हो चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिटवीन द टू एटम फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड इज 1.9 और ग्रेटर देन. हाई लेटेस्ट एनर्जी होनी चाहिए. कैटाइन एंड एनाइन शुड बी इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, शुड हैव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन. ओके, another important point that अमोनियम आयन, जो अमोनियम आयन होता है, ये क्या है आपका, अमोनियम आयन एक ऐसा कैटाइन है विच हैज़ द नॉन मेटल एटम्स और all the cations is a metal atom is found by metal. ओके डियर, बट अमोनियम आयंस कैसा है, नॉन मेटल एटम से फॉर्म होता है. ओके डियर. ओके, नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, नॉन डायरेक्शनल होता है. इसकी जो बॉन्ड्स का होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है. सपोज दैट NaCl का अगर हम बात कर रहे हैं NaCl का, तो NaCl अभी जस्ट मैंने बताया कि सोडियम आयन के अराउंड 6 क्लोराइड आयन होते हैं, अराउंड 6 क्लोराइड होंगे. तो इस साइड में इस एंगल पे, इस एंगल पे किसी भी एंगल पे आपका क्लोराइड आयन होगा, कोई फिक्स्ड एंगल नहीं होगा. देयरफॉर द कंपाउंड इज नोन एज द नॉन डायरेक्शनल. ओके, तो अंडरस्टैंड नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड. पोलर एंड आयनिक कंपाउंड, पोल्स मीन्स ये कैटाइन और एनाइन बन रहा है, एक पोल पॉजिटिव है और एक पोल निगेटिव है. देयरफॉर ये पोलर और आयनिक कंपाउंड. ओके डियर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक डिजॉल्व लाइक. जिस नेचर का जो कंपाउंड होगा उसी नेचर वाले कंपाउंड में डिजॉल्व होगा. मीन्स डियर स्टूडेंट्स, हमारी फ्रेंडशिप उसी पर्सन के साथ हो सकती है जिस पर्सन की क्वालिटीज़ हमसे क्या करेंगी, मैच करेंगी. उसी के साथ हमारी फ्रेंडशिप कैसी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है. वैसे ही लाइक डिजॉल्व लाइक. ओके, हैविंग हाई
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ऐसा सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट, डिसोल्यूशन ऑफ कंपाउंड। वाटर हैज़ द हाइएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अबाउट 78। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट MCQ के लिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 78, हाइएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देयरफॉर वाटर इज द मोस्ट यूजफुल solvent. It is also known as the universal solvent. What? Universal solvent. Universal solvent is water. Universal solvent is water. Universal solvent is water. Okay. Another fact is the hydration energy should be greater than lattice energy for the dissolution. Hydration energy greater than lattice energy. Okay. Next point is that they have high melting and boiling point due to the electrostatic force, between to the ions. Okay dear? They conduct electricity in solution as well as molten state या fused state as well as solid state. Solid state में भी आपके क्या करंट फ्लो करेगा. ओके डियर. नाउ दे शो फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन. जो आयनिक रिएक्शन होती हैं वो इंस्टेंट रिएक्शन होती हैं, सडनली फ्यू सेकेंड, 10 to the power -9 सेकेंड, 10 to the power -9 सेकेंड में रिएक्शन करता है. आयनिक रिएक्शंस की जो रेट होती है 10 to the power -9 सेकेंड. ओके डियर. नाउ अनदर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इज द no one compound is 100% ionic. Every ionic compound has some covalent character which is confirmed by Fajan rule. Okay dear, so what is Fajan rule? Discuss करेंगे later. Okay, thank you, have a nice day. Okay, thank you.